السلام علیکم، یہ ہے سچ نیوز اور میں ہوں ہما دورانی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ اے رب کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں وطن عزیز پاکستان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، عالم اسلام کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، آمین۔ سندھ میں قدرت کی جانب سے برسی ابر رحمت انتظامیہ کی نااہلی کے سبب زحمت بن گئی۔ بارش سے جہاں موسم خوشگوار ہوا، وہیں شہریوں کو مشکلات کا بھی سامنا ہے۔ سندھ شدید بارشوں کی لپیٹ میں، موسلادھار بارشوں نے تباہی مچا دی۔ دادو میں کاچو کے علاقے کیر تھر کے پہاڑی سلسلے میں شدید بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ کاچو کے سینکڑوں گاؤں سیلاب میں ڈوب گئے۔ دیہاتوں کا ضلع ہیڈ کوارٹر سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ انتظامیہ کی جانب سے علاقہ مکینوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، جس کے باعث علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی پر مجبور ہے۔ مٹیاری شہر اور اس کے گرد و نواح میں ہونے والی بارش رحمت کے بجائے زحمت بن گئی۔ 2 روز سے جاری بارش نے ٹاؤن کمیٹی اور ضلعی انتظامیہ کے دعووں کی کلی کھول کر رکھ دی۔ ڈیرہ بگٹی میں حفاظتی بند ٹوٹنے کے باعث 2 نوجوان بارش کے پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ خیرپور میں آسمانی بجلی گرنے سے نوجوان جان کی بازی ہار گیا۔ بادل برستے ہی کئی علاقوں میں بجلی بھی معطل ہو گئی، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ رحیم یار خان کے علاقے ٹھل حمزہ میں مانسون کی پہلی بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول کر رکھ دیا۔ نکاسی کا بہتر انتظام نہ ہونے کی وجہ سے سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ سانگڑ میں بھی بارش سے جل تھل ہو گیا۔ نارا میں بارش سے نشیبی علاقے زیر آب، جبکہ ندی نالوں میں بھی طغیانی آ گئی۔ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں، جبکہ شہر کی سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو آمد و رفت میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ اسی پہ رپورٹ کریں گے جانزیب علی۔ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں بارش کے بعد نشیبی علاقے ڈوب چکے ہیں۔ حیدرآباد ریلوے اسٹیشن کے باہر سڑک تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے۔ بارش و سیوریج کے پانی جمع ہونے سے مسافروں کو شدید پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں۔ شہریوں نے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سندھ و ضلعی انتظامیہ حیدرآباد کو چاہیے تھا کہ وہ اس بارش کی صورتحال سے پہلے نکاسی آب کا مسئلہ حل کرتے تو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا، اور نہ ہی ریلوے اسٹیشن حیدرآباد کے باہر پانی کھڑا رہتا۔ مین اسٹیشن کا روڈ کا یہ حال ہے تو حیدرآباد کے مختلف علاقوں کا کیا حال ہوگا؟ جو غریب آبادیاں ہیں، جہاں پر لوگ دنیا بھر کے آنا جانا کرتے ہیں اسپتالوں کے لیے اس موسم میں، وہ بیچارے نہ رکشے والا اٹھاتا ہے ان کو، نہ کسی ٹیکسی والا اس کو اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ ہماری حکومت سے، انتظامیہ سے یہ ہماری درخواست ہے کہ لہٰذا یہ ہمارے حال کے اوپر رحم کرے۔ ہمارے کمرشل کاروبار خراب ہو رہا ہے، روزگار خراب ہو رہا ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ریلوے اسٹیشن حیدرآباد کے باہر سے بارش اور سیوریج کے پانی کی نکاسی آپ کا فوری نوٹس لے کر پانی کو نکالا جائے، تاکہ مسافروں اور دکانداروں کو پریشانی سے بچایا جائے۔ کیمرامین اشتیاق حسین کے ساتھ جہانزیب علی، بیورو چیف، سچ نیوز، حیدرآباد۔ چنیوٹ شہر اور اس کے گرد و نواح میں کم وولٹیج اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی حرام بنا دی ہے۔ رپورٹ کریں گے عبدالرحمان کلیار۔ چنیوٹ شہر اور اس کے گرد و نواح میں بجلی کے کم وولٹیج اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔ شہری بجلی کی طویل بندش کی وجہ سے پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ اس سلسلے میں لاہور روڈ سمیت دیگر علاقوں کے باسیوں نے وابڈا آف چنیوٹ کے سامنے شدید احتجاج کیا اور وابڈا کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ 2 دن تو سر جی بجلی خراب ہے، تو پنڈ دا بڑے حالات خراب نے، پمپ پانی کو نہیں چاہ رہے، بجلی تھوڑی ہے۔ 5.5 دن تو ساری بجلی بند ہے۔ وابڈا والے کوئی پرواہ نہیں کرتے، اسی فون کریے ساری سنتے کوئی نہیں۔ مسئلہ پیچھے بجلی دا ہوندا ہے، بیراں والے بنگلے تے لیاں ساڈی کالونی دی آ کٹ جاندے، بچے نہ کو پانی لبدا پیا۔ 2 دن ہو گئے بجلی جناب علی نہیں ہے، بچے جڑے راتی سر رات تڑپ رہے، کوئی ڈنگر نہیں پانی پی رہا، موٹراں شوٹراں سب آف ہوئی پئی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کم وولٹیج کی وجہ سے ہماری کئی الیکٹرانکس کی چیزیں جل جاتی ہیں۔ ہم وابڈا آفس چنیوٹ کے چکر لگا کر تھک گئے ہیں، لیکن ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ وہ علاقہ مکینوں پر ترس کھائیں اور اس مسئلے کو حل کروائیں۔ کیمرامین ایم تبسم کے ساتھ عبدالرحمان کلیار، سچ نیوز، چنیوٹ۔ نواب شاہ میں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ گھنٹوں تک بجلی کا غائب رہنا معمول بن چکا ہے، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ آصف رضا کی رپورٹ دیکھیں گے۔
महंगी बिजली के बिलों की अदायगी के बावजूद फिर भी शहरी बिजली को तरसने लगे। ना दिन में सुकून तो ना रात का आराम। बिजली ना होने की वजह से खवातीन गर्मी से बेहाल होती हैं तो होती रहें, बच्चे गर्मी से बिलखते हैं तो बिलखते रहें, मगर हेस्को वालों ने बिजली नहीं देनी। बिजली जाती जरूर है मगर कब आएगी ये किसी को मालूम नहीं। ट्रांसफार्मर में खराबी हो जाए या जल जाने की सूरत में 2 से 3 दिन तक ना ही ट्रांसफार्मर लगता है तो ना हेस्को का अमला नजर आता है। पैसे दें तो ट्रांसफार्मर लगता है। लाइन पर ओल्ड नवाब शाह मोहल्ला सैयदाबाद, जहां पर रूटीन की जो लोड शेडिंग है वो 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग है, लेकिन उसके बावजूद ये एरिया ऐसा, यहाँ पे मैं वाज़ेह कर दूं, जो गरीब तबका, मजदूर तबका, रेडी चलाने वाला है, इस गर्मी की हालत में ना दिन में सुकून है ना रात में सुकून। हम यहाँ पे जाते हैं कंप्लेंट सेंटर पे, ना ही कोई लाइनमैन मौजूद होता है, किसी का कोई मसला टाइमली नहीं होता है। अगर उनको पैसों का आसरा होता है तो फिर वो टाइमली आ जाते हैं। बाकी ये है अगर ग्रीवेंस तो कम से कम लोगों का हल करें। बिजली ना होने की सूरत में अहले मोहल्ला पानी को भी तरसने लगे। बिजली होती है तो वाटर सप्लाई नहीं तो दूसरी जानिब वाटर सप्लाई के वक्त में बिजली गायब हो जाती है। हेस्को कंप्लेन ऑफिस में कंप्लेन भी की और इंतजामिया से फरियाद भी की, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं, कोई दादरसी करने वाला नहीं। परेशान अवाम आखिर जाए तो कहाँ जाए। कैमरा टीम के हमरा आसिफ रजा आशिक, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, नवाबशाह। कोहाट के देहाती इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग 18 घंटों से भी तजावुज कर गई, जिससे अवाम सख्त परेशान है। रिपोर्ट करेंगे अली बंगिर। के देहाती इलाकों का चई, मरई, मिठाखान, अलीजई, खदीजई, उस्तरजई, लुधी खेल, रईसान, जोजारा और इब्राहिम जई की अवाम बिजली की नारवा लोड शेडिंग से सख्त परेशान हैं। गुज़श्ता 2 माह से 24 घंटों में से 18 से 19 घंटे लोड शेडिंग होती है। अगर कुछ घंटों के लिए लाइट आ जाती है तो वोल्टेज 20 से 30 तक होता है, जैसे न पंखा और न फ्रिज वगैरह चल सकता है। पिछले कई महीनों से हमारे बिजली का सिलसिला बहुत खराब है। तकरीबन 24 घंटों में 18 घंटे बिजली हमारी नहीं होती। जब आती है तो वो उसका वोल्टेज भी 20 से या 30 वोल्ट की होती है। तो उसका रिजल्ट फिर ये होता है कि न तो पानी का सिलसिला चलता है, न कोई मशीन चलती है, और अंजाम ये होता है कि आए रोज़ ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। जब ट्रांसफार्मर जल जाते हैं तो फिर हम अपनी मदद आपके तहत अपने पैसों से उसको ठीक कर लेते हैं। फिर जब शाम आती है फिर वही ट्रांसफार्मर जल जाता है। अपने अरबाब इख्तियार से पुरजोर अपील करते हैं, खासतौर इमरान खान से, कि हमारे इस मसले को हल किया जाए। वाज़ेह रहे, अगर नारवा और गैर कानूनी लोड शेडिंग का फौरी तौर पर खात्मा नहीं किया गया तो आवाम सड़कों पर निकल आएंगे और किसी भी सूरत हाल की जिम्मेदारी महकमे वापडा, जिली इंतजामिया और मरकजी और सूबाई हुकूमत पर आयद होगी। अली बंगश, सच न्यूज, कोहाट। पेशावर में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर शहरियों ने बिल ना जमा करवाने की ठान ली। बिजली के बिल जलाकर सिविल नाफरमानी का ऐलान भी कर दिया। पेशावर से अदनान शाहिद की रिपोर्ट देखेंगे। पेशावर में गैर एलानिया लोड शेडिंग के सिलसिले के साथ साथ ट्रिपिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। दुरानपुर के रिहायशियों ने पहले तो एहतजाज किया और फिर सिविल नाफरमानी करते हुए तमाम बिल जलाकर वापडा और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। हर वक्त या तो 10 घंटे या 12 घंटे ये तो लाजमन है, और इसके अलावा यहाँ पे हम फुल पेमेंट करते हैं। ये पूरी कॉलोनी ऑफिसर कॉलोनी है दुरानपुर की, इसके मकीन जो है ना वो फुल पेमेंट करते हैं, और आज तक कभी वापडा वालों को ये शिकायत नहीं हुई कि यहाँ से पेमेंट नहीं आ रही है। यहाँ पे ट्रिपिंग का मसला तो शदीद हो गया है। इसके अलावा लोड शेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है। घंटे बाद जो है वो यहाँ पे लोड शेडिंग, घंटे बाद बिजली जाती है। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कोई 10 to 12 आवर्स जो है यहाँ पे बिजली होती है, इसके अलावा बिजली नहीं होती। तो डेफिनेटली लोगों का मसला जो है जेन्युइन है, सारे लोग बिल पेयर हैं, सारे लोग बिल दे रहे हैं। दूसरी जानिब दुरानपुर के रिहायशी कहते हैं कि बिजली गायब होना मामूल बन गया है, जबकि कम वोल्टेज की वजह से कीमती आलात जल जाने से इनको माली नुकसान का सामना है। बिजली अगर 1 घंटा है और 1 घंटे के लिए चला जाए फिर भी सही है। आप यकीन माने, मैंने किस्तों पे एक फ्रीजर लिया था 75,000 रुपए का, कल वो जो है ना जल गया है, उसका जो है ना कंप्रेसर काम छोड़ गया है। वो मिस्त्री के पास मैं लेके गया था, उसने कहा कि इस पे 15,000 रुपए खर्च, तो मैं कहाँ से लाऊं 15,000 रुपए। बिल अदायगी के बावजूद भी 12 से 15 घंटे बिजली बंदिश की वजह से इलाका मकीनों ने ऐलान कर दिया कि अगर जश्न आजादी के दिन तक बिजली का मसला हल न हुआ तो वो आजादी के दिन वापडा हाउस का घेराव करेंगे। कैमरामैन अरसलान तारिक के साथ अदनान शाहिद, सच टीवी, पेशावर।
पिपला के नवाही इलाके हरनोली को सरगोदा और लाहौर से मिलाने वाली अहम शाहरा का तामीराती काम फंड्स की अदम दस्तयाबी के सबब इल्तवा का शिकार है, जिसके बायस हादसात मामूल बन गए हैं। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट देखेंगे। पिपला के नवाही इलाका हरनोली को वां भजना और दीगर बड़े शहरों से मिलाने वाली अहम तरीन सड़क का तामीराती काम अरसा 1 साल से इल्तवा का शिकार है। 22 किलोमीटर तवील सड़क के लिए करीबन 7 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए, मगर तामीराती काम मुकम्मल न हो सका। रोड़ा डाल के आप इसकी हालत देख सकते हैं, रोड़ा डाल के रफू चक्कर हो गया। इसके 2 ठेकेदार थे, जिस कोर्ट सीमेंट लुक्का भी करके देना था, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जब ये रोड नहीं बना था उस वक्त हमें आसानी थी, क्योंकि ये वजीर आजम का आबाई हल्का है और इस पे वजीर आजम साहब को भी गौर करनी चाहिए। शहरियों का कहना है कि सड़क को उखाड़ कर छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से न सिर्फ हादसात में कई गुना इजाफा हुआ, बल्कि सड़क पर से उठने वाली धूल मट्टी से शहरी गले और सांस के अमराज का शिकार हो रहे हैं। वाज़ेह रहे कि तहसील पिपला वजीर आजम पाकिस्तान के आबाई जिला मियांवाली की वो बदनसीब तहसील है जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे इक़्तिदार के आगाज से ही मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। सड़कें खंडरात के मनाजिर पेश कर रही हैं, तो वहीं साबका अदवार में शुरू किए गए मंसूबों पर भी काम ठप पड़ा है। तहसील पिपला के अवाम से हुकूमती रवैया इंतहाई मायूस कुन और इंतकामी है। हरनोली के शहरियों का कहना है कि अरसा दराज से इल्तवा का शिकार इस सड़क को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि आए रोज रूनुमा होने वाले ट्रैफिक हादसात से शहरियों की जान छूट सके और शहरी गर्दो गुबार से बच सके। कैमरामैन अब्दुल गफार बच्चर के साथ मोहम्मद आसिफ, सच न्यूज, हरनोली, तहसील पिपला, जिला मियांवाली। तेज रफ्तारी जान पर भारी पड़ गई। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 9 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। तेज रफ्तारी और ड्राइवर्स की गफलत हादसात का सबब। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में मुतअद्दिद अफराद जान की बाजी हार गए। घोटकी में सखर मुल्तान मोटरवे पर तेज रफ्तार कोच उलटने से 3 अफराद जाँ बहक जबकि 17 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में ड्राइवर समेत 2 मुसाफिर शामिल है। मुसाफिर कोच कराची से एबटाबाद जा रही थी कि हादसे का शिकार हो गई। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मुल्तान की तहसील शुजाआबाद में मोटरवे पर एम्बुलेंस और ट्रक में तसादुम से 3 अफराद मौका पर जाँ बहक जबकि 4 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को नश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया। अब्दुल हकीम में 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम से 1 शख्स जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। जख्मी को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद नश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया। खैरपुर में कौमी शराब पर ट्रालर की चिंची रक्षा को टक्कर से रक्षा ड्राइवर जाँ बहक हो गया। पुलिस ने ट्रालर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मानसेरा में स्याहों की गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 1 शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस सखर के सिविल अस्पताल की मुसाफिरगाह सहूलत के बजाय इम्तहान बन चुकी है। इसी पे रिपोर्ट करेंगे औरंगजेब मलिक। सक्कर की सिविल इंतजामिया के वादे धरे के धरे रह गए। दूर दराज से आने वाले मरीजों के साथ आने वाले अफराद सिविल अस्पताल के मुसाफिर खानों में रहते हैं, लेकिन मुसाफिर खाने में सफाई सुथराई का कोई इंतजाम नहीं। मुसाफिर खाने में रहने वाले परदेसी सहूलतों से महरूम हैं। न खाने का बंदोबस्त है, न पीने का बंदोबस्त है, कुछ भी नहीं है। यहाँ परेशान हाल में बैठा हूँ। अभी ये देखो इसका हाल क्या है। ये अभी यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ इसका क्या हाल है। ये सिविल हॉस्पिटल में मुसाफिर खाने में खड़े हुए हैं, तो यहाँ ना कोई सहूलत है ना कोई सफाई है। यहाँ पे हम जमीनों पे लेटने, हालांकि यहाँ चरपाइयाँ मौजूद हैं लेकिन वो चरपाइयाँ नहीं देते और हम दूर दराज से आए हैं। हुकूमत सिंध और वजीर सेहत सिविल अस्पताल के मुसाफिर खाने में दूर दराज से आने वाले मुसाफिरों को सहूलियात मुहैया करें ताकि सिविल अस्पताल सक्कर का नाम बेहतर अंदाज में लिया जा सके। कैमरामैन अदनान राजपूत के साथ औरंगजेब मलिक, सच न्यूज, सक्कर। मुबारकपुर में भी बारान रहमत इंतजामिया की गफलत के बायस सहमत बन गई। 2 रोज गुजर जाने के बाद भी शहर की सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जिससे शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद परेशानी का सामना है। रिपोर्ट करेंगे यासिर नाइच। टाउन कमेटी मुबारकपुर में बारिश के बाद शहर की सड़कों पर जगह जगह पानी खड़े होने से ट्रैफिक की रवानी को शदीद मुश्किलात का सामना। दाखिली रास्तों के अलावा शहर में सेवरेज सिस्टम खराबी के बायस जगह जगह पानी झील की शक्ल इख्तियार कर गया। रेलवे रोड, नूरपुर, चौकभट्टा रोड, रमजी चौक के नजदीक रोड पर बड़े गड्ढों में पानी जमा होकर रोजाना हादसात का सबब बन रहा है। बारिश के पानी से भरे गहरे खड्डों से गुजरने वाले लोड ट्रैक्टर ट्रालियां मुतअद्दिद बार गिरने और रोड ब्लॉक हो जाता है। M5 मोटरवे झांगड़ा इंटरचेंज से बहावलपुर जाने के लिए मसरूफ रोड बन चुका है। इसके अलावा चौकभट्टा, हतेजी, कोटला, मूसे खान की ट्रैफिक भी इसी रास्ते से गुजरती है। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर से नोटिस लेने का मुतालबा किया है।
लिया में महंगाई और हुकूमती पॉलिसियों के सताए क्लास 4 के सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए और एहतजाज किया। रिपोर्ट करेंगे ज़हूर दुरानी। क्लास 4 ऐसा तबका है जो कि दफातर में अफसरान की खिदमत और तबादुल समेत दफातर में आए सैलीन के साथ अच्छे रवैये के साथ उनकी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ता। बढ़ती महंगाई के तूफान के बायस जो सरकारी एहलकार मुतासर हुए उनमें सबसे बड़ी तादाद क्लास 4 की है, जो कि कम तनख्वाह और सहूलियात के फुकदान में रहते हुए जिंदगी बसर करते हैं। तनख्वाहें न बढ़ाने और ऊपर से क़यामत किसी महंगाई के खिलाफ लिया में क्लास 4 मुलाजमीन ने सड़कों पर आते हुए एहतजाज किया। हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते। देखें, इन्होंने ये 2 पाकिस्तान बना दिए। जो आज दावा कर रहे थे जो हुकूमत में आने पे जिस नारे पे ये कायम हुई थी, इन्होंने जजेस की तनख्वाहें बढ़ाई हैं, MP MNs की तनख्वाहें बढ़ाई हैं और सेक्रेटरीट की तनख्वाहें बढ़ाई हैं। हम आज से नहीं बहुत देर से ये हमारे मुतालबात हैं कि हमारी जो बुनियादी तनख्वाह है, बुनियादी स्केल है, वो एक किया जाए। मुजाहिरीन ने एहतजाज के दौरान महंगाई कम करने और सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा किया। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। पेशावर में चीनी की बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। शहरी कहते हैं कि माफिया के खिलाफ कार्रवाई के बावजूद भी चीनी की कीमतें कम न हो सकी। डालते आटा महंगा हो जाता है, चीनी पर हाथ डालते। ये इमरान खान को पूछना चाहिए क्यों, क्या वजह, तुम क्यों महंगे करते हो? गरीब की पहुंच से सब कुछ दूर हो रहा है, पता नहीं क्या बनेगा आगे हमारा गरीबों का। पहले आटे को महंगा कर दिया है, गायब हो गया। अब चीनी जो है वो जो है 80, 85, 90 से लेकर अब 100 तक पहुंच गए। मैं खुद शरबत का कारोबार कर रहा हूँ, पहले 10 रुपए गिलास बेचता था, 15-20 बेच रहा हूँ। इधर कोई पूछने वाला नहीं है, बस रोज रोज महंगाई होते है। अभी चीनी 100 रुपए किलो है, आवाम बहुत परेशान है और ये गरीब लोग क्या करेगा यार। चीनी भी महंगा हो गया, आटा भी महंगा हो गया, हम किधर जाते, किधर रोएगा। मुल्क भर की तरह शुजाबाद में यौम आजादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी है। शहर भर में जगह जगह सब्ज हिलाली परचम और झंडियों के स्टॉल सजा दिए गए। मजीद जानते हैं वजाहत हुसैन की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह शुजाबाद में यौम आज़ादी की तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। शहर भर में जगह जगह सब्ज हलाली परचम और झंडियों के स्टॉल सजा दिए गए हैं। अपने घरों और मोहल्लों को सजाने के लिए छोटे बड़े हों या बच्चे या खवातीन सब भी सब्ज हलाली परचम, झंडियां और बैजेस खरीदने में मसरूफ नजर आते हैं। जबकि इस हवाले से शहरियों का कहना है कि घर को अच्छी तरह सजाएंगे। पिछले साल जैसे गुजरे हैं उस साल की तरह इस साल भी हम अच्छे तरीके से मनाएंगे। बच्चों के लिए बैग वगैरह की चीजें खरीद रहे हैं ताकि बच्चे हमारे खुश हो जाएं। दिल पाकिस्तान में 14 अगस्त के हवाले से सामान लेना है, झंडे और बैजेस वगैरह। हम जोश और जज्बे से 14 अगस्त मनाएंगे। आज़ादी को हर साल की तरह मनाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा खरीदारी हो रही है। तो हमें अपने मुल्क की खातिर इस तरह मेहनत करनी चाहिए और कुर्बानियाँ हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को कुर्बानियों से हासिल किया है, तो हमें उन कुर्बानियों को याद करते हुए अपने मुल्क का ख्याल रखना चाहिए और इन खुशियों में 14 अगस्त की खुशियों में अपने कश्मीरी भाइयों को नहीं भूलना चाहिए। और जश्न आज़ादी शहरियों के लिए दोहरी खुशी का मौका है जिसे शहरी भरपूर तरीके से मना रहे हैं। कैमरामैन मुबशिरुल हक कैमरा, वजाहत हुसैन, सच न्यूज़, शुजाबाद। मुल्क भर की तरह जलालपुर भटिया में भी जश्न आजादी के दिन को शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां जारी हैं। शहर भर में जगह जगह स्टॉल सज गए हैं जहां शहरी खरीदारी में मसरूफ हैं। देखते हैं फरहाद मुनीर की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह जलालपुर भटिया में भी जश्न आज़ादी के दिन को शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियों का सिलसिला जारी है। शहर भर में जगह जगह खूबसूरत स्टॉल सज गए हैं। झंडे, झंडियाँ और बैज की फरोख्त का सिलसिला जारी। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम जिंदा कौम हैं और जीवे जीवे पाकिस्तान जैसे तरानों से फिजा गूंजने लगी है। जैसे जैसे 14 अगस्त का दिन करीब आ रहा है, बच्चों और बड़ों में मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा भी बढ़ रहा है। कैमरामैन गुलाम हुसैन बूटा के साथ फरहाद मुनीर, सच न्यूज़, जलालपुर भटिया। कसूर में भी हर साल की तरह इस साल भी जश्न आजादी की तैयारियां जारी हैं। जगह जगह सब्ज हिलाली परचम और दीगर सजावट की अशिया के स्टॉल लग गए हैं। देखते हैं मेहर मोहम्मद अमीन की रिपोर्ट।
मुल्क भर की तरह कसूर में भी अगस्त का महीना शुरू होते ही यौम आज़ादी मनाने के लिए जगह जगह रंग बिरंगी झंडियों और सब्ज हलाली परचम के स्टॉल लगना शुरू हो जाते हैं। बड़े तो बड़े बच्चों की हुब्बुल वतनी का जज्बा आसमानों को छूने लगा है। मैं 14 अगस्त के लिए झंडियाँ लेने आया हूँ और 14 अगस्त मनाने के लिए परजोश हैं और छोटे छोटे बच्चों को तो बहुत जोश है कि वो कहते हैं कि हम अपने पापा को लेकर आएंगे, हम ये चीज़ लेंगे, हम वो लेंगे, हम फ्लैग लेंगे। कसूर की मेन शहराओं और बाजारों में जहां पाकिस्तानी परचम है, वहीं पर बच्चों के लिए गुज़श्ता सालों से मुनफरद स्टाइल में दीदा ज़ेब वैरायटियां, जिनमें ऐनकें, टोपियां, चूड़ियां, हैंडबैग्स, मास्क, पर्स, हर चीज ही सब्ज हलाली परचम के रंग में रंग गई है। वतन से मोहब्बत का जज्बा हर तरफ सर चढ़कर बोल रहा है। दूसरी तरफ इस दफा कश्मीर से इज़हार यकजहती करते हुए कश्मीर के झंडे की मांग में भी इजाफा हो गया है और दुकानदारों ने कश्मीर का झंडा बनाना भी शुरू कर दिया है। हर साल से बढ़कर वैरायटी लाई जाए, कोई मुख्तलिफ वैरायटी लाई जाए और इस दफ़ा साथ साथ देखने में आ रहा है कि कश्मीर के झंडे की बहुत खरीदो फरोख्त है, तो इसलिए हमने कश्मीर झंडे को भी बहुत तरजीह दी है। कश्मीर झंडा लेकर आए हैं, लोग बहुत जोशो खरोश से आ रहे हैं, कश्मीर का झंडा खरीद रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा खरीद रहे हैं और बहुत सारी खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों का इस मौके पर कहना है कि हम मुत्तहिद कौम हैं और जश्न आज़ादी को भरपूर अंदाज से मनाते हैं। वतन अजीज के लिए हमारे बावजूदात ने जो कुर्बानियां दी उन्हें भुलाना मुमकिन नहीं। हम वतन अजीज पर हर आने वाले मुश्किल वक्त में पाक आर्मी के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मेहर मोहम्मद अमीन, सच न्यूज, कसूर। बलूचिस्तान के जिला ज़ियारत के खूबसूरत और पुरफजा मकाम पर लकड़ी से बनाई गई फन तामीर की खूबसूरत शाहकार कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी आज भी बाबाए कौम की पुरअसर शख्सियत और मौजूदगी का एहसास दिलाती है। इस अहम कौमी वर्से के हवाले से मजीद तफसीलात का अहाता किया है अब्दुल गनी काकड़ ने। इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। वादी क्वेटा से 122 किलोमीटर के फासले पर वाक़या जिला ज़ियारत के पुरफिजा मुकाम पर पाकिस्तान की ये तारीखी रेजिडेंसी 1892 के अवाइल में तामीर की गई थी, जिसे उस वक्त हुकूमत बरतानिया के आला अफसरान आर्जी रिहाइश के लिए इस्तेमाल करते थे। 1948 को इस रेजिडेंसी की तारीखी अहमियत में उस वक्त इजाफा हुआ जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नासाजी तबीयत के बायस अपने जाती मौलिज के मशवरे पर 1 जुलाई को यहाँ तशरीफ लाए। बाबाए कौम ने 2 माह 10 दिन इस रेजिडेंसी में क़याम किया। 15 जून 2013 में दहशतगर्द हमले से मुतासिर होने के बाद हुकूमत ने 16 करोड़ रुपए की लागत से मुरम्मत करवाकर दोबारा इस रेजिडेंसी को अपनी असल हालत में बहाल किया। फन तामीर के इस खूबसूरत शाहकार की मुरम्मत के काम में मुल्क के माहिर तरीन इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स ने हिस्सा लिया। 8 कमरों पर मुश्तमिल लकड़ी से तामीर की गई इस खूबसूरत रेजिडेंसी में दोनों अतराफ से 28 दरवाजे हैं। रेजिडेंसी के कमरों में एक कमरा मोहतरमा फातिमा जिन्ना, एक कायद-ए-आज़म के जाती मौलिज कर्नल इलाही बख्श, जबकि एक कमरा बाबाए कौम के मोतमिद खास के लिए मुख्तस किया गया था। इस तारीखी रेजिडेंसी में एक कमरा ऐसा भी है जहां कायद-ए-आज़म दोपहर और रात को खाना खाने और रफ़काए कार के साथ शतरंज खेला करते थे। रेजिडेंसी में रखी गई बाबाए कौम की जाती अशिया आज भी उनकी पुरअसर शख्सियत और मौजूदगी का एहसास दिलाती हैं। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, क्वेटा। और इंजीर एक ऐसा फल है जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है और अल्लाह ने इंजीर की कसम खाई है जो इसकी अहमियत और अफादियत में मजीद इजाफा कर देता है। इसको जन्नत का फल भी कहा जाता है। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब। चकवाल से 60 किलोमीटर के फासले पर मुनारा के इलाके में अमीर फार्म मौजूद है जहां अंजीर कसरत से पाया जाता है। ये एक नरम फल है और इसे दुनिया में पसंद किया जाता है। ये बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों में यकसा मकबूल है, जबकि पाकिस्तान में ये फल हर मौसम में दस्तयाब होता है। अंजीर के अंदर प्रोटीन, कुदरती शक्कर, कैल्शियम और फास्फोरस बड़ी मिकदार में पाए जाते हैं। अवाम इस फार्म की सैर को भी आते हैं। अंजीर फार्म पे हम खड़े हैं। ये अंजीर का बाग है, तो ये एक इंतहाई पुरफजा मकाम भी है। उसके अलावा यहाँ पे फ्रेश अंजीर का बाग भी, अंजीर का फल भी आपको दस्तयाब है और यहाँ पे आप खुली फ़ज़ा में अपना अच्छा टाइम भी गुजार सकते हैं। तो अंजीर जो है ये एक बड़ा नायाब और अच्छा फल है। इसका कुरान करीम में भी तज़किरा है। ये आपकी बॉडी की क़ुव्वत मदाफ़त भी बढ़ाता है
اور اگر آپ اس نیت سے کھائیں کہ اس کا قرآن کریم میں ذکر ہے تو آپ کو اس کی افادیت کے ساتھ ساتھ ثواب بھی ملے گا۔ ہمارے پاس ایک انجیر کا باغ ہے خوشاب روڈ چکوال میں، یہاں پہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، انجیر کو وزٹ کرتے ہیں، کھاتے ہیں، اس کی بہت سارے افادیت ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، قوت مدافع بڑھاتا ہے۔ انجیر معدے، چہرے کی رنگت، کمزوری اور بخار میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ مثانے کی پتھری کو ختم کرنے اور زہر کے مؤثر اثرات سے بچاتا ہے۔ اس کا شمار دنیا کے مشہور ترین اور غذائیت سے بھرپور پھلوں میں ہوتا ہے۔ کیمرہ مین رائے شاہ زیب کے ساتھ رجت ثاقب عباس، بیورو چیف، سچ نیوز، چکوال۔ پاکستان میں اکثر دل کی بات رکشوں پر نظر آتی ہے، وہ بھی بغیر کسی بناوٹ کے مزیدار جملے، دلچسپ کہاوتیں اور گھڑے گھڑائے شعر جنہیں دیکھتے ہی پڑھنے والے کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ عبد المجید باٹی رپورٹ کریں گے۔ اکثر و بیشتر ہماری نظر سڑک پر دوڑتے یا کھڑے ایسے ٹرک، ویگن یا رکشوں پر پڑتی ہے جن پر کئی طرح کی اسلامی تحریریں لکھی ہوتی ہیں، جن کے پڑھنے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہم محب وطن پاکستانی اور مسلمان ہیں۔ مثال کے طور پر والدین کا احترام کریں، ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں تیری عظمت کو سلام، واہ مولا تیری شان، یا اللہ تیرا شکر ہے احسان عظیم ہے، یعنی اللہ پاک جس حالت میں رکھے اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ اس کے بعد ڈرائیور اپنا تعارف کچھ یوں کراتے ہیں، جیسا کہ یہاں ایک رکشے پہ لکھا ہے، بابا پیر کبیر دی دیوانی، یعنی میں کبیر والا شہر کے رہنے والی ہوں۔ آگے لکھتا ہے کہ بابا جی مست زبردست، یعنی چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے۔ پھر اپنے شوق بیان کرتے ہوئے ڈرائیور صاحب لکھتے ہیں، ساڑھے دو ہی شوق، سونی گڈی تے سونے لوگ، یعنی ہمارے دو ہی شوق ہیں، یعنی خوبصورت گاڑی اور خوبصورت لوگ۔ اسی طرح ڈرائیور اپنی تیز رفتاری کے حوالے سے لکھتے ہیں، سواری ملے نہ ملے، سپیڈ 190 کلومیٹر، اور پھر کہتا ہے، دیکھنے میں ڈولی چلنے میں گولی۔ اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ زندگی میں جب بھی کہیں مشکل مقام آیا، نہ بریک نے ساتھ دیا نہ کوئی گیئر کام آیا۔ اب دیکھتے ہیں مختلف گاڑیوں پر لکھے بے ساختہ جملوں کو جو گاڑی مالک کے جذبات کے ترجمان ہوتے ہیں۔ واپڈا کے علاوہ تمام اہل وطن کو جشن آزادی مبارک ہو۔ اور پھر ایک رکشے پہ لکھا ہے کہ بڑا ہو کے کرولا بنوں گا، ہارن ایسا بجائیں قوم سو رہی ہے۔ اب ایک نظر دیکھتے ہیں گاڑیوں پر لکھے اشعار کی جو اس علاقے کی نہ صرف ثقافت کی پہچان ہوتے ہیں بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ڈرائیورز کے جذبات کے ترجمان ہوتے ہیں۔ مت جاؤ ہاتھوں کی لکیروں پر، نصیب تو ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ کون کسی کے ساتھ کتنا مخلص ہے دوست، وقت ہر شخص کی اوقات بتا دیتا ہے۔ دولت والے دعا نہیں کرتے، حسن والے وفا نہیں کرتے، ہم تو کلندر مزاج لوگ ہیں، کسی کو بھی بد دعا نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک ٹرک پہ لکھا تھا، دولت کو مت جوڑ، کفن کو جیب نہیں ہوتی۔ کیمرہ مین وقاص علی سہو کے ساتھ عبد المجید باٹی، سچ نیوز، کبیر والا۔ کرکٹ میلہ ہمیشہ ہموار گراؤنڈ پر سجایا جاتا ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں کرکٹ کے دیوانوں نے پہاڑوں کے درمیان گزرنے والی سڑک کو ہی وکٹ لگا لی۔ نوجوانوں کے پہاڑوں میں سڑک پر کرکٹ کھیلنے کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ منفرد میدان، دلچسپ میچ کے شائقین بھی میچ جیتنے پر داد دینے کے لیے دوڑے چلے آئے۔ اور کامر گیند کا فیلڈ کیا 2 رن کے اضافے کے ساتھ نے دوڑنا شروع کیا، پیر کو کراس کیا گیند کی اور This team won the title out of 32 teams, and what a victory and what a way of celebration. ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ مظفر گڑھ کی تحصیل سنانواں کا معذور جوڑا اپنے جیسے معذور افراد کو روزگار فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ رپورٹ کریں گے منیر حسین۔ سنانواں میں ایک ایسا معذور شادی شدہ جوڑا احسان اور مہین خریدا جو اپنی مثال آپ ہیں، جو اپنے جیسے معذور افراد کے لیے روزگار فراہم کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں مخیر حضرات کی مدد سے سلائی مشینیں اور راشن تقسیم کیا۔ خواتین میں سلائی مشینیں تقسیم کرنے کا مقصد ان کو روزگار کے قابل بنانا
ताकि वो किसी पर बोझ न बन सकें। सिनामा जैसे छोटे शहर में पसमानदा इलाके में एक शऊर उजागर करना है ताकि ये माजूर अफराद किसी पे बोझ ना बने। आज हम उनके लिए सिलाई मशीनें उन्हें तकसीम कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम उन्हें राशन भी दे रहे हैं। सिलाई मशीनें तकसीम करने का मकसद यही है कि माजूर अफराद इस माशरे का एक अहम हिस्सा बन सके और वालदैन पे और इस मईशत पे, पाकिस्तान की बोझ तले दबी मईशत पे बोझ न बने और अपना खुद रोज़गार कमा सकें और अपना पेट पाल सकें। माजूर बहनों के लिए हमने आज सिलाई मशीनों का बंदोबस्त किया है। माजूर अफराद का कहना था कि सिलाई मशीनें मिलने पर हम अपना कारोबार कर सकेंगे ताकि हम किसी पर बोझ न बन सकें। कल हम यहाँ सिनामा में आए हैं और एहसान भाई ने हमें सिलाई मशीन दी है जिससे हम अपना रोजगार कर सकें। सिलाई मशीन मिल गई, गरीब बंदे हैं, देरी मजदूर हैं, लू हैं, सिलाई मशीन करे सीसन बेटा तो आप दुआ करे अपने मेरा को दुआ करे। सिलाई मशीन दी और इससे मैं अपने घर में बैठ के अपनी रोजी रोटी कमा सकूँ। माजूर अफराद ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि ऐसे मौके फराहम किए जाएं ताकि माजूर अफराद किसी पर बोझ बनने के बजाय खुद कमा सकें। कैमरा टीम के हमरा मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनामा। इलाकाई खबरों से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk और देखते रहिए सच।